Assalamu alaikum students. This is Monday, April 5, 2021. I am Asim bin Salim and I am teaching you the subject of physics this year. Hope you all are doing fine at home. I welcome you all in the first introductory lesson of physics. First of all, I congratulate all of you on your success and successful promotion to pre-9th. So, physics is an interesting subject. We already have studied science. So, as you know, science is classified into two main streams, that are biological sciences and physical sciences. So, in physical sciences domain, we have we come up with the subject of physics. So, physics. So, what we will study in this subject? So, physics is about our surrounding. Anything happening in our surrounding can be best analyzed, observed if you know the concepts of physics. So, after learning this subject, you will be able to analyze and observe things around us from the perspective of physics. So, physics is that much interesting subject. It is more practical based than the theory. So you guys do not have to worry about this course. This is a very interesting course and very knowledgeable. It includes theory, practical, and some analytical portion, that is some kind of mathematics which we call numerical problems. So numerical problem is just like examples that we did in the science course. For example, if we are given with the mass of a body, so how can we compute the weight? As we know that if we multiply mass with the gravitational acceleration, we can compute the weight. So these kind of mathematical computations will also be included in this subject. So this subject was one of my interesting subjects when I was in the matriculation, like even in first year and second year. So after that, physics is further classified into many other streams, in which electrical engineering is one of the stream derived from physics. So therefore, I adopted electrical engineering as my subject for graduation and masters. So physics is an interesting subject. Inshallah, you will learn a lot during this course, and hopefully this COVID will end and we will come up with in-campus classes for this subject. So starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Moving on to our contents in this subject, what we will study. So these are the contents that we are going to study in this course. So we are comprised of 9 units, in which we will cover around 5 to 6 units in in your pre-9th session, and the remaining will be covered in 9th, and after that we will make revisions in the 9th class. Okay, so basic purpose of pre-9th is to have a preliminary knowledge of the subject before you are being promoted to the 9th. So it comprises of 9 units. The first unit is physical quantities and measurements. So physical quantity is like anything that is measurable, anything, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप काउंट कर सको, जिसको आप मेजर कर सको. फॉर एग्जांपल, आप अपनी बॉडी की हाइट मेजर कर सकते हैं. सो हाइट इज समथिंग. तो हाइट को हम क्या कहेंगे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल, योर बॉडी हैज सम मैस. सो अगर हम मैस को मेजर करें, सो तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी? मैस.
उसको मेजर करेंगे किसी पर्टिकुलर यूनिट में, फॉर एग्जांपल केजीज में. सो केजी इज द यूनिट यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. अब हम लेंथ को केजी में तो मेजर नहीं कर सकते, सो इसलिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक उसकी पर्टिकुलर यूनिट होती है. सो लेंथ को या हाइट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में. जस्ट लाइक यू यूज स्केल फॉर ड्राइंग लाइन in geometries. So this whole chapter will discuss about what are physical quantities and how do we measure them, how do we classify them, and after that what are the measuring instruments that are used in laboratories related to the physics field. So in the next chapter we will discuss about kinematics. So what is kinematics? Kinematics and dynamics, both of these chapter deal with motion. So कोई भी body जब कोई move कर रही होती है, for example a man is walking, the car is moving, the aeroplane flying, these all are the kinds of motions. So we will mainly discuss about the motion, और उसकी क्या क्या types होती हैं, motion किस वजह से होती है. So these kind of effects will be studied. In the unit 4 we will discuss about turning effect of forces. For example the wheel कैसे move करता है, कैसे turn करता है. Okay, so इसी तरह गाड़ी का steering है, हम उसको कैसे turn करते हैं, क्या कैसे force apply करते हैं, कौन सी फोर्सेस होती हैं, पुश की होती है, पुल फोर्स होती है, या एनी अदर फोर्स होती है जो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो टर्न करता है. सो फॉर एग्जांपल डोर को हम ओपन करते हैं तो वो किसी एक पॉइंट के अराउंड डोर क्या करता है, टर्न कर रहा होता है, ठीक है, रोटेट कर रहा होता है. तो ये आखिर किसी फोर्स की वजह से होता है. और उस फोर्स के लिए कोई लोकेशन होनी चाहिए. क्या हम दरवाजे को हैंडल के बजाय जहाँ पे वो कनेक्टेड है वहाँ से फोर्स लगा के क्या हम उसे खोल और बंद कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उस आपको फोर्स अगर अप्लाई करनी है तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अप्लाई करेंगे तो वो आउटकम आपको देगा. सो इस तरह के हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को देखेंगे. यूनिट 5 के अंदर है ग्रेविटेशन. सो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज द ग्रेविटेशन, और इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है. ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो अर्थ है वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं ये अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स को देखते हुए आउटर स्पेस में भेजी जाती हैं और फिर वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं. ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है जो वायरलेस कम्युनिकेशन, वो हम थ्रू सैटेलाइट्स के लिए करते हैं. और दिस ऑल इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशन. एंड रिमेंबर दैट इस ग्रेविटेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सो दैट वाज न्यूटन. सो न्यूटन साहब ने क्या किया, वो एक दफ़ा एक दरख्त के नीचे बैठे थे, एप्पल का ट्री था उसके नीचे बैठे हुए थे, तो अचानक ये हुआ कि सेब ऊपर से गिर गया. बीइंग ए ह्यूमन साइको, हमारी जो नेचर होती तो हम क्या करते, जस्ट एप्पल फॉल हुआ है, जस्ट पिक इट अप एंड ईट एंड कैरी ऑन योर वर्क. बट दैट वाज अ मैन हु हैज सम लॉजिक. वो लोग लॉजिक्स को देखते थे, वो क्रिटिकली थिंक करते थे कि आखिर ये सेब, तो फिर न्यूटन साहब ने ये सोचने की कोशिश की कि आखिर ये सेब नीचे क्यों गिरा. अगर ये प्लक हुआ था टहनी के साथ से तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, या फिर ये उसी जगह के ऊपर फ्लॉट क्यों नहीं करता रहा, ये नीचे ही क्यों गिरा. तो इसके ऊपर फिर न्यूटन साहब ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अर्थ की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उसी अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से वो एप्पल ट्री से नीचे गिरता है. और न्यूटन साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अर्थ अट्रैक्ट करती है, उन्होंने ये कहा कि हर एक बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है. सो इस तरह एप्पल ने भी कुछ फोर्स अप्लाई की होगी, लेकिन वो फोर्स इतनी इफेक्टिव नहीं थी. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होती है जिसका मैस जितना ज़्यादा हो. तो आपके ख्याल में अर्थ का जो मैस है, सो दैट इज़ समवेयर 6 into 10. 10 को अगर हम 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर वो 6 से मल्टीप्लाई करें तो इतने केजीज ऑफ द मैस है अर्थ का. सो ड्यू टू इट्स बिगर मैस उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है. ओके,
So after that we will discuss work and energy, फिर properties of matter you will study it in the science, that what is matter. So matter की जो states होती हैं, solid liquid gas and plasma, so उन states of matter को देखेंगे। फिर हर एक state में matter किस तरह exist करता है, क्या क्या उसकी properties होती हैं, ठीक है। फिर हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को देखेंगे कि कोई जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, उनको अगर टेम्परेचर दिया जाए, उनको हीट मिले, तो उसका उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर हम हीट के ट्रांसफ़र को देखेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम सर्दियाँ होती हैं तो हम सन बाथ लेते हैं ताकि हीट स्टोर कर सकें, टू वार्म अप आवर बॉडी। तो वो हीट कहाँ से आ रही होती है? सन से आ रही होती है। वो किस ज़रिए से आती है? सो ये सारा कुछ हम लर्न करेंगे इस कोर्स के अंदर। So that much important course and very interesting course. It is all about real life. आपकी रियल लाइफ में, आपकी सोसाइटी में डेली लाइफ के जो इवेंट्स हो रहे हैं, फिज़िक्स उसी को डिस्कस करती है और उसकी बेसिक्स बताती है कि ये अगर इवेंट हो रहा है आपकी डेली लाइफ के अंदर, तो ये इवेंट किस वजह से हो रहा है, तो उसकी लॉजिक आपको बताएगी। So hopefully you all are interested to learn about how these events are being carried out in the universe. और इस्लाम भी हमें इसी चीज़ के बारे में कहता है कि आप क्या करें, इस कायनात के अंदर गौर व फिक्र करें, ठीक है। सो जितना ज़्यादा हम गौर करेंगे उतना हम बेहतर सीखेंगे, और इस गौर व फिक्र के लिए हमारे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज हम साइंस के ज़रिए गेन करते हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स के ज़रिए गेन करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अवर यूनिट नंबर 1. So first unit is physical quantities and measurements. As I already explained in this unit कि हम इसके अंदर quantities को देखेंगे। जो मैंने explain की quantities क्या होती हैं कि all measurable quantities are called as physical quantities, ठीक है। ऐसी किसी भी चीज़ को जिसको आप measure कर सको, count कर सको, हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक quantity है, physical quantity है। फिर हम moving on, these are the some topics included in this unit. So moving on. So here we come up with science, technology and society, how they are linked with each other. So what is science? So as I already told you while teaching the science subject, okay, what is science? तो साइंस क्या होता है? The knowledge that is gained through experimentations and observations is known as science. So here in this paragraph, last line is mentioned as the knowledge gained through observations and experimentations is called science. So ये है साइंस की बेसिक डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी साइंस के सब्जेक्ट के अंदर लिखवाई थी। और ये हमारा, तो वो बेसिकली जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी, वो जो मैंने डेफिनेशन उठाई थी, वो यहाँ फिज़िक्स से उठाई थी मैंने, ठीक। सो दैट इज़ साइंस। सो जो हम एक्सपेरिमेंट्स करके और उसके बाद कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो हम उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, दैट इज़ टोटली साइंस। तो अब ये साइंस कैसे आया? द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स नॉलेज। सो साइंस का मतलब ही क्या है? नॉलेज। ओके, वो नॉलेज आप दो वेज से गेन करते हो, या तो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। सो नॉट until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called as natural philosophy. तो इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि जब साइंस नहीं थी तो उससे पहले क्या पढ़ा जाता था? 11th इवन की 18th सेंचुरी तक साइंस का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो उससे पहले कैसे लोग नॉलेज लेते थे? दैट वाज नॉलेज वाज टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल फिलॉसफी। तो वो नेचुरल फिलॉसफी क्या थी कि हम ये कहते थे, इंसान ये कहता था कि जो भी अमल हो रहा है, एनी ऑफ द प्रोसेस अकरिंग इन द यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ द नेचर, कि ये खुदा की तरफ से नेचर है। लेकिन खुदा ने उस हर अमल के अंदर कोई ना कोई हिकमत रखी होती है, लॉजिक रखी होती है। सो वो लॉजिक ढूंढना इज नाउन एज साइंस। तो वो लॉजिक हमें साइंस ने दी। ओके, सो जो जो नॉलेज इंक्रीज होता गया, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स, दैट वाज फिजिकल साइंसेस व्हिच डील्स विद study of non-living things, and biological sciences which are concerned with the study of living things. तो साइंस को हम दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फिजिकल साइंसेज एंड
बायोलॉजिकल साइंस। ओके, सो फिजिकल साइंसेज वो होती हैं जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर है, बुक है, टेबल है, कार है, एरोप्लेन है, जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमारी सोसाइटी में हमारे अराउंड एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में नॉलेज गेन करना ये कौन सी डोमेन में आता है? फिजिकल साइंसेज। और बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या आ जाता है हमारे पास कि इंसानों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, फिशरीज के बारे में, जितने भी एनिमल्स जिस जिस डोमेन से एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, उनके बारे में नॉलेज गेन करना इज ऑफ द डोमेन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। सो मूविंग ऑन टू फिजिक्स। सो व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो फिजिक्स की क्या डेफिनेशन बनती है? तो फिजिक्स बेसिकली हम ये कहेंगे कि ये कौन सी साइंस की कौन सी डोमेन से निकला है? फिजिकल साइंसेज। So you can start here that in the 19th century physical sciences were divided into 5 distinct disciplines। तो हम 19th century के अंदर फिजिकल साइंसेज को डिवाइड किया गया डिफरेंट स्ट्रीम्स में। तो कौन कौन सी स्ट्रीम्स थी उनमें? एक फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, एस्ट्रोनॉमी थी, जियोलॉजी थी एंड मेटेरोलॉजी थी। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज द फिजिक्स। तो फिजिक्स बेसिकली इन तमाम डिसिप्लिन्स की बेस बनी है about knowledge in which we discuss about the knowledge of non-living things। okay, so what is physics? physics की क्या definition है? कहते हैं in physics we study matter, energy and their interaction। ठीक, तो physics की क्या definition हुई कि the branch of science, के साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है मैटर को, और उसके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो मैंने खाना खाया, फूड, तो फूड की वजह से मुझे एनर्जी मिली, तो उस एनर्जी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज कर रहा हूँ ड्यू टू एनर्जी। ओके, सो दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ओके, सो आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि वो एनर्जी फ्लो डायग्राम जो हम पढ़ते हैं, या फूड चेन, या वो सारा प्लान्स। ठीक है, सो वो एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी होती है ये सिर्फ फिजिकल यानी ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ एनर्जीज पाई जाती हैं। ठीक, सो मैटर की 4 स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। और सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में जो एनर्जी उनके अंदर स्टोर्ड होती है या किसी भी ज़रिए से उनको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का उनके आपस मैटर के साथ क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। सिर्फ उनका रिलेशन नहीं, मैटर का भी, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, दैट इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। सो you have to study these paragraphs about physics even till this topic 1.2। तो यहाँ तक आपने ये सारे पैराग्राफ्स को गो थ्रू करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क थ्रू व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट इफ वी आर बीइंग कनेक्टेड ऑन दैट। सो इन फिजिक्स वी स्टडी, हाँ, प्रीवियसली हमने कहा कि साइंस, तो साइंस को हमने 2 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया, एक फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। फिर हमने क्या कहा कि फिजिकल साइंसेज को मज़ीद स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया, तो उनमें से एक ब्रांच निकली, दैट इज़ फिज़िक्स। ठीक, और अब फिज़िक्स में से अगर हम कोई मज़ीद ब्रांच डिराइव करें तो वो क्या होगी? फिज़िक्स को मज़ीद हम किस किस ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं? सो दैट इज़ मैकेनिक्स। सो हेयर द मेंशन्ड आर branches of physics, so that these are mechanics, heat, sound, light, electricity and magnetism, atomic physics, nuclear physics, plasma physics and geophysics। So these all are the different fields within the physics। okay, so देखें, as you know electricity and magnetism here is mentioned। so electricity और magnetism में भी सिर्फ specific अगर आप electricity के ऊपर जाएं सो उससे आपके पास जो डोमेन निकलती है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो हर एक डोमेन में फिज़िक्स के अंदर ये इंजीनियरिंग, जितनी भी जिस फील्ड में इंजीनियरिंग हो रही है
उसकी जो बेस है वो फिजिक्स से मिली है। सो मैकेनिक्स क्या है जी? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो मैकेनिक्स निकला है मैकेनिकल से, ठीक है। तो मैकेनिकल यानी मैकेनिकल पार्ट जिसमें कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मोशन, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स की मोशन उसका किस वजह से होती है और उस मोशन के नतीजे में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या एक्शंस होते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आउटकम्स हैं, उसको हम इस चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। उसके बाद हीट क्या होती है? अगर हम फायर या हीटर जलाएं तो क्या होता है? उससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। सो हीट की नेचर को स्टडी करना, फॉर एग्जांपल कि वो सूरज की यानी धूप की वजह से आ रही है, किसी और लाइट सोर्स की वजह से हीट आ रही है, या कोई इस तरह बर्निंग सोर्स है जिसकी वजह से हमारे पास हीट आ रही है। सो दिस इज़ द नेचर यानी कि वो किस किस स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है, हीट किस किस सोर्स से आ सकती है। तो दैट इज़ नेचर ऑफ हीट। और फिर मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि वो हीट हम तक कैसे या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफ़र होती है, और फिर उसके नतीजे में उस दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आते हैं? हीट। After that, we come up with sound. So what is sound? It deals with the physical aspects of sound waves, कि sound waves कैसे produce होती हैं, उनकी production, उनकी क्या क्या properties होती हैं, sound waves की क्या properties होती हैं। For example, उनके अंदर frequency होती है, as we studied earlier in the science. I have greatly told you about frequency क्या होती है, wavelength क्या होती है, all these things. So sound waves के अंदर हमने इनकी प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़, और साउंड वेव्स को यूज़ कहाँ पे किया जाता है। क्या आपको पता है कि हम जो सी की डेप्थ है वो कैसे मेजर की जाती है? अल्ट्रासाउंड से। यानी वो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती हैं और जो कि हमारे कान नहीं सुन सकते, ठीक है, उनको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और वो साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए जनरेट की जाती है और वो साउंड वेव जाके जो समुंदर की डेप्थ होती है उस पर स्ट्राइक करके वापस आती है और किसी सेंसर पे वो रिसीव होती है। तो वो जितने टाइम के अंदर आना और जाना उसका, तो वो टाइम की कैलकुलेशन की बेस पे हम सी की डेप्थ फाइंड करते हैं। कि हम कोई स्केल तो नहीं यूज़ कर सकते कि हम सी की डेप्थ फाइंड करें। सो ये एप्लीकेशन है साउंड, रिमेंबर। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? लाइट, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स या लाइट, बेसिकली कि लाइट के क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है, रोशनी। ओके, लाइट डजेंट मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मीन रोशनी, यानी सूरज की रोशनी है या कोई और लाइट सोर्स हम चलाते हैं उसके नतीजे में जो रोशनी फैलती है, सो दैट इज नोन एज लाइट। सो लाइट के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एस्पेक्ट्स होते हैं? तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट जिनके ऊपर इफेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स किस डोमेन में आते हैं? ऑप्टिक्स में। सो आपने सुना होगा अक्सर, अगर आपने कोई ग्लासेस वाली शॉप पे जाएं जहाँ पे सन ग्लासेस हैं या दूसरी जो जिनकी आई साइट वीक होती है उनके लिए अगर आपने ग्लासेस बनवानी है तो उस शॉप के ऊपर लिखा होता है ऑप्टिकल शॉप या ऑप्टिक्स शॉप। तो ऑप्टिक निकला है लाइट से, ठीक है। सो ऑप्टिक मीन लाइट, जिसमें आप लाइट के मतलब का डीलिंग होती है। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक, और मैग्नेट का क्या रोल है। एक तो आपने नेचुरल मैग्नेट देखा होगा ना जिसके नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। एक वो मैग्नेट होता है जिसको अगर आप एक ऐसी कॉइल है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये पेंसिल जो है आप यूज़ करते हैं, बॉल पॉइंट, ये कलर बॉल पॉइंट्स जो होती हैं, इसके अंदर जो स्प्रिंग यूज़ होता है, इसकी तरह स्प्रिंग जो मेटल का है, इसको अगर मैं दोनों तरफ वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स करंट दे दूं, कनेक्ट कर दूं इसके साथ, तो ये आपके ख्याल में ये मैग्नेट बन सकता है, क्या आपको पता है? हम इस चीज़ को इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हर एक ब्रांच के ऊपर पूरा फिजिक्स की एक डोमेन है, एक पूरी रिसर्च है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड ऑन दिस वन सिंगल टॉपिक। सो ये इतने वाइड टॉपिक्स हैं कि मैं अगर एक्सप्लेन करने पे जाऊँ तो आई नीड
hours and days to explain that. So let's keep it precise to their definitions. So electricity and magnetism में हम क्या देखते हैं, their effects and their relationship with magnetism. So atomic physics में क्या करते हैं हम, एटम्स को देखते हैं. एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. हम उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं. एटम के अंदर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, शेल्स होते हैं, ये सारा कुछ हमने साइंस के अंदर पढ़ा होगा. आगे हम इस चीज़ को देखेंगे. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होना एटॉमिक फिजिक्स. देन आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स. सो एटम के अंदर भी आपने देखा होगा न्यूक्लियस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके रखता है, ठीक है, शेल के अंदर, एक पर्टिकुलर शेल के अंदर. उस न्यूक्लियस को अगर हम देखें, ठीक है, उन न्यूक्लियाई के बिहेवियर को देखें, ठीक है, और फिर उनकी एप्लीकेशंस हैं. ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो बनते हैं, ये न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियाइज के ऊपर स्टडी करके हम न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ जाते हैं. और ये बहुत हाई एनर्जी होती है न्यूक्लियस की वजह से. देन है प्लाज्मा फिजिक्स. तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो हमारे पास, उसको इन डिटेल स्टडी को बोलते हैं हम प्लाज्मा फिजिक्स. एंड देन जियो फिजिक्स. तो जियो फिजिक्स क्या आ जाती है कि जिसमें हम अर्थ यानी ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो जियो का मतलब होता है अर्थ. जस्ट लाइक यू हैव स्टडीज अबाउट जियोमेट्री. जियोमेट्री मीन, मेट्री कहते हैं मेजरमेंट को, जियो कहते हैं अर्थ. तो अर्थ की मेजरमेंट को हम जियोमेट्री बोलते हैं. सो इसी तरह जियो फिजिक्स, जियो मीन अर्थ, फिजिक्स मीन उसके बारे में, अर्थ के अंदर जो मैटर है या एनर्जी है उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है. सो दैट इज जियो फिजिक्स. दैट वाज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस. Hopefully you guys have learned many things. So be passionate about this course, show your interest to me. Inshallah you will learn a lot from this course. Hope you guys have learned something new in this course. The homework will be attached on the portal. You guys will have to download and do it on your notebook. Make sure you assign a separate notebook or register to write your homework of the physics. ठीक है, एक पर्टिकुलर सिर्फ फिजिक्स के लिए आप एक रजिस्टर असाइन कर लें जिसके ऊपर आप फिजिक्स का होमवर्क किया करें, उसका नोट किया करें. ओके. सो आज के लिए जो होमवर्क इसमें से बन रहा है तो वो बेसिकली कुछ डेफिनेशंस हैं. जैसे साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन, ठीक है. सो व्हाट इज साइंस. सो साइंस को हम दो स्ट्रीम्स में डिवाइड करते हैं. एक साइंस की डेफिनेशन आ गई, फिर दूसरा फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई, और फिर हमारे पास कुछ आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स और इनकी डेफिनेशन. ये छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन हैं. सो ये आपका होमवर्क होगा जो कि पोर्टल के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. जज़ाकल्लाह. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.